محترم عزیزان گرامی، مسیح خداوند کے پرجلال باکمال اور بے مثال نام میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا نام فریاد گل ہے اور آج ایک ویڈیو مجھے فارورڈ کی گئی میرے سبسکرائبر بھائی طارق مجید کی طرف سے۔ ویڈیو آپ سنیں اور کس طرح سے ایک شخص جو ایک ایماندار ہے اس کو ایک سوال کا جواب ملتا ہے اور وہ ڈاؤٹ میں ہے اور وہ آگے سوال کسی اور پاسٹر کو بھیجتا ہے اور پاسٹر صاحب اسے کس طرح سے خراب کر رہے ہیں۔ آپ پہلے ویڈیو دیکھیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ پریز گاڈ، ہاللویہ، خداوند کی تعریف ہو۔ بڑا خوبصورت کویسچن آیا ہے پاسٹر جی۔ ایک پاسٹر نے کہا ہے کہ ہم یسوع کو باپ نہیں کہہ سکتے، پلیز اس پر روشنی ڈالیں۔ بات یہ ہے کہ میں اس سے پہلے کہ روشنی ڈالوں میں آپ کو یہ کہنا مانگتا ہوں کہ ہم یسوع کو باپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آدم سے ساری کی ساری دنیا آئی ہے، ہم اس کی نسل میں سے ہیں، تو آدم پوری دنیا کا باپ ہے، ٹھیک ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ اکثر ہم لوگ خدا کو محدود کرتے ہیں، یعنی ایک صندوق ہے یا باکس ہے، اس میں جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھنا یہ کہ خدا جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یوحنا پہلا باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہوئی سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، ٹھیک ہے؟ اب خداوند جو ہے وہ کوئی بھی شیپ یا فارم جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ اب اس جگہ پہ دیکھتے ہیں یوحنا 14 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ ہم جس میں سے نکلتے ہیں وہ ہمارا باپ ہے۔ جس طرح میں اپنے باپ میں سے نکلا ہوں تو وہ میرا ڈیڈی یا وہ میرا باپ ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ جس میں سے نکلے ہیں وہ آپ کا باپ ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھیں کہ یسوع کس میں سے نکلا۔ یسوع جو ہے وہ خدا میں سے نکلا ہے، خدا کا بیٹا ہے، اور اسی لیے ہم یسوع کو کیا کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا۔ آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم تثلیث کو دیکھیں تو اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا بیٹا، یعنی اگر تثلیث اور یسوع اور ایک ہے، اس میں سب کمبائنڈ ایک ہیں، تو اس کے مطابق بھی یسوع جو ہے وہ اگر خدا باپ ہے تو یسوع بھی باپ جو ہے وہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کس طرح یسوع کو ہم باپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ ہم دیکھیں نکلے کدھر سے ہیں، کیونکہ بائبل میں ہم یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خداوند کے فرزند، اس کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی ہمیں حق ملا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ جب اس پر ایمان لائے تو ٹھیک ہے، اور اس کو قبول کیا تو ہم اس کے فرزند بن گئے، ٹھیک ہے؟ بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ ہم لوگ جو ہے وہ بن گئے ہیں۔ اگر ہم اس کے بیٹے ہیں تو پھر یسوع ہمارا باپ بن ہو گیا آٹومیٹیکلی۔ اچھا جی، تفصیل آپ نے دیکھ لی۔ پاسٹر صاحب وہ جو بندہ ہے تھوڑا بہت وہ ٹھیک ہی تھا، لیکن اگر آپ اس ویڈیو پر دیکھیں کامنٹس وغیرہ تو ایک نہیں بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اب ہوتا یہ ہے یوزلی کہ آپ کلام تو بہت سارے لوگ سناتے ہیں، کلام تو عام طور پر سنایا ہی جاتا ہے، لیکن جو اصلاح ہے وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب کوئی خرابی کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی آ کر اصلاح نہیں کرتا تو وہ خرابی پھر بڑھتی جاتی ہے، اور اصلاح نہ کرنا بھی کیا ہو جائے گا، یعنی کہ آپ نے خدا کے نام کے لیے کھڑے نہیں ہونا تو پھر رکھ لیں تعلق دنیا داری کے، رکھ لیں جتنے بھی آپ رکھ سکتے ہیں پھر، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے جی۔ ہمیں وہ بات پسند ہے جو خدا کا کلام بتاتا ہے، نان ڈینومینیشنل ایجوکیشن، وہ جو کتاب مقدس میں درج ہے، بس اس کی بات ہم کریں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں کتاب مقدس میں سے۔ پہلی بات جو کلیئر ہونی چاہیے ہم سب کو وہ یہ ہے کہ خدا خود اناؤنسمنٹ کرتا ہے اپنے بیٹے کی،
मौलूद मुक़द्दस, मुख्तार दो आलम, मुनज्जी आलम यस्सु मसीह की, कि ये मेरा इकलौता बेटा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप सबको भी पता है। यानी कि जब मसीह खुदावंद का बपतिस्मा हुआ और जब रूह कबूतर की सूरत में उतरा, तो तब आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। इसके बाद भी रेफरेंसेस हैं, जब वो दुआ भी कर रहे थे पहाड़ पर, सूरत तब्दील हुई, तब भी ये आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो। ये किताब मुक़द्दस में खुदा की तरफ से अनाउंसमेंट थी कि ये मेरा बेटा है। अब जब खुदा की तरफ से अनाउंसमेंट है तो बेटे की तरफ से भी तो होनी चाहिए ना। तो बेटे ने एक नहीं, किताब मुक़द्दस में अनाजील में देखें बारहा ये कहा, ए बाप। दुआ रबानी में हमें सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो कहो ए हमारे बाप। यानी उसने हमें अपने बाप को, खुदा को अब्बा, ए बाप, फादर कहने का हक बख्श दिया। ये एक मामूली बात नहीं है। और वो बारहा खुद कहता रहा। यूहन्ना की इंजील के 16वें बाब की 22वीं आयत में वो कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे, मेरा बाप वो तुम्हें देगा। और यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब में बार बार खुदावंद यस्सु मसीह आसमान के बाप को, अपने बाप को यानी खुदा को बाप कहकर मुखातब करते हुए दिखाई देते हैं। और सलीब पर भी, ए बाप इनको माफ़ कर, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यानी कि वो भी क्लियर कट ये बयान करते हैं कि खुदा जो है अकनूम अव्वल आसमान पर मौजूद खुदा, वो मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूँ। दोनों की तरफ से ये वजाहत मिल जाती है। आगे रसूल भी इसका इकरार करते हैं, आगे किताब मुक़द्दस में भी वाज़े तालीम इसकी मिलती है। लेकिन जो हमारा ताल्लुक़ है बहसीयत मसीही ईमानदार खुदा के साथ और मसीह के साथ, कौन सा रिश्ता हम कायम कर सकते हैं? आइए कुछ रेफरेंसेस आपके सामने रखता हूँ। एक रेफरेंस जो मैं आपके सामने कोट करने लगा हूँ, ये वीडियो में पास्टर साहब भी कोट कर रहे हैं, बट वो उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, उनको इसको बयान करना नहीं आया। आइए किताब मुक़द्दस में से यूहन्ना की इंजील का पहला बाब, और जो आयत है बेसिकली वो है 12वीं आयत, लेकिन मैं 10वीं आयत से पढ़ता हूँ। वो दुनिया में था और आगाज़ में उसी को कलाम लिखा है, इब्तिदा में कलाम था। ये सारी मसीह के ताल्लुक से बात हो रही है। वो दुनिया में था यानी मसीह, और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। ये मसीह खुदावंद की बात है। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। ये आया यहूदियों के पास और जो हुआ आप जानते हैं। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, यानी बाद अज़ा जितने भी, चाहे वो यहूदी थे या बाद अज़ा जितने भी गैर अक़वाम में से थे, गैर यहूदी थे, जितने भी, सब ने, जितनों ने उसे कबूल किया, यानी किसे कबूल किया? खुदावंद यस्सु मसीह को कबूल किया। उसने उन्हें, किसने उन्हें? यानी खुदावंद यस्सु मसीह ने किनको, यानी जिन्होंने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का, यानी कि अकनूम अव्वल जो आसमान पर बैठा खुदा है, मौजूद है वहाँ पर, तख्तगाह है उसकी, उसके फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके यानी मसीह के नाम पर ईमान लाते हैं। ये इसकी तशरीह है आयत की। वो बेटे और बेटियां मसीह के नहीं बनते, खुदा बाप के बनते हैं। और इस आयत में साफ साफ लिखा है, गौर से इसको पढ़ लीजिएगा बाद में भी आप। और फर्जंद का मतलब जो है, ये फर्जंद इस्तिलाह दोनों के लिए, यानी बेटों के लिए भी और बेटियों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। फर्जंद नरीना बेटे को कहते हैं और फर्जंद मदीना बेटी को कहते हैं। तो जितने भी मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं, वो सब मसीह खुदावंद के वसीले से खुदा बाप को बाप, अब्बा, डैडी कहने का हक पा लेते हैं, उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और ऐसा ही एक रेफरेंस गलतियों का खत, उसका 3रा बाब, उसकी 26वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम सब ईमान के वसीले से, इसी आयत की तशरीह है, क्योंकि तुम सब ईमान के वसीले से जो मसीह यस्सु में है, यानी ईमान मसीह के वसीले से है, खुदा के फर्जंद हो। आमीन। और गलतियों के खत के 4थे बाब की 16वीं 17वीं आयत में लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। और लिखा है अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास। खुदा के बेटे बेटियां, खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास। क्लियर कट लिखा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लिखा है बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं।
तो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम खुदा बाप के बेटे और बेटियां बनते हैं। और फिर यूहन्ना रसूल बयान करते हैं, पहला खत यूहन्ना का खत उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत में, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी। वाह, बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, यानी बेटे और बेटियां। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया है कि यीशु मसीह के वसीले से, किसके वसीले से? यीशु मसीह के वसीले से उसके ले पालिक बेटे कहलाएं। मसीह के वसीले से, याद रखें, यानी कि हम खुदा बाप के बेटे और बेटियां बनते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से। ठीक है जी। किताब मुक़द्दस बरमला इकरार करती है कि खुदा का इकलौता बेटा है, हकीकी बेटा, इकलौता बेटा, और वो मसीह खुदावंद है। लेकिन उसके बाकी जो बच्चे हैं, यानी हम सब, मसीह के वसीले से उसके ले पालिक बेटे और बेटियां बनते हैं। और इस सेंस में मसीह फिर पहलौठा बनता है। तो जवाब ये है कि मसीह को, वहाँ पे तो जी हज़ारों ने देख लिया, इस वीडियो को जो कलाम पर मबनी है पता नहीं कितने लोग देखते हैं। आपसे दरख्वास्त ये है कि आप इसको शेयर लाजमी कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे दरख्वास्त है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। तो जनाब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि खुदा ने अपने बेटे के वसीला से हम ईमानदारों को अपने बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा, फजल बख्शा, रहम किया हम पर। और मैंने आपके सामने मुख्तलिफ हवालाजात रखे, बहुत सारे और भी हैं लेकिन चंद एक रखे ताकि आप समझ पाएँ। और अगर हम मसीह को ही बाप कहना शुरू कर दें, मसीह खुदावंद हमारा बाप है, तो उसका जो बाप है वो तो साड़ा दादा हो गया। फिर वो कुछ खुदा दा खौफ करो, ये रॉन्ग थियोलॉजी है। और हमारे ईमानदार लोगों को भी समझ नहीं आती। सादा लोग, इतने भी सादा ना बनो कि भाई कलाम आपके सामने गलत पेश किया जा रहा है तो ही आमीन हालेलुया करी जाओ। कुछ खुदा दा खौफ करो और इस कलाम को शेयर लाजमी कीजिएगा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। खुदावंद आपका हामी व नासिर और निगहबान हो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।